Yes, good morning, students. As we have discussed yesterday about the physical change and the chemical change. So today we will discuss about the types of the pure substances. As all of you know that pure substances are those substances which consist of only one type of particles. तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? Which consists of only one type of the particles or cannot be separated by physical method like filtration, heating, etc. इस मेथड से हम इसको क्या नहीं कर सकते, इजिली सेपरेट नहीं कर सकते. So that type of the substances are known as pure substances. And today we will discuss about the type of pure substances. As all of you know that pure substances are of two types. One is known as your elements and second one is known as compounds. Understand? There are the two types of the pure substances. One is known as your element and second one is known as your compounds. So today we will discuss about the elements and the compound. How many types of the elements are there and how the compounds are formed, what are the changes present between them, etc. What are the characteristics and the properties of that we will discuss there. Okay. So first we will start about the elements. Elements means the term was first discovered by the Robert Boyle. Robert Boyle was a scientist. जिसने Boyle's law दिए थे. You will discuss that in the 11th class. He also discovered the Boyle element word in 1661. यानी 1661 में सबसे पहले इसका नेम आ गया था क्या? एलिमेंट. कि एलिमेंट कुछ होता है, उसे नाम दे रहे. बट it was experimentally proved by the Anthony Lavoisier. इसने क्या किया? इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. नाम तो पहले पता चल गया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? एंटोनी लेवोसियर ने. इन यूर 1743 to 94 के बीच में जब तक ये जीवित रहा, इसके बीच में इसने एंटोनी लेवोसियर ने एलिमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवोसियर, what will be the define of the element? He defined that it is the basic form of matter. Listen carefully. It is the basic form of matter which cannot be broken down. Which cannot be broken down into simple substances by physical method. Understand? जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में बाय द फिजिकल मेथड और केमिकल रिएक्शन. So basic form of the matter that cannot be broken down into the simple substances by the physical method or the chemical reaction करके हम उसको divide नहीं कर सकते simple substances में. That is known as your element. That element is generally हम कह सकते हैं एक single type of substance होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के आपके क्या प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. So depending upon that, these elements is further divided into three types. So elements can be further divided into the three types. What are these three types? You have heard about these three types in the 8th class, and these three types are your metals, non-metals,
and metalloids. Right? So the element is further divided into the three parts. One is your metal, second one is your non-metal, third one is your metal. आपने मेटल के बारे में भी पहले पढ़ा हुआ है, नॉन मेटल के बारे में पढ़ा हुआ है, मेटलॉइड के बारे में भी पढ़ा हुआ है. In our periodic table there are around 108 elements are. Total कितने elements है? 108. In 108, 92 are natural, while others are artificially made. How they are artificially made? By the combination of two metals or by the breaking down of the one metal into two or three metals or the non-metal. कि दो मेटल लेके, जैसे आपका एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये सिंबल है, इन दोनों को मिलाओ तो हीलियम बनता है. जो आपका रिएक्शन किसके ऊपर होता है? सूर्य सन के ऊपर होता है, जिससे हीट निकलती है. उसी तरह से जो हीलियम है ये फर्दर आपको किस में डिवाइड हो सकता है? दो हाइड्रोजन में डिवाइड हो सकता है, तो आपकी तभी दोबारा से हीट निकलती है. इसीलिए कंटिन्यूसली सन के ऊपर आपकी हीट रिमूवल चलता रहता है. यानी इट इज एक्सोथर्मिक इन द नेचर, मींस हीट इज रिलीज व्हेन आइदर देयर इज combination of hydrogen taking place or either decomposition of the helium into the hydrogen and the hydrogen is taking place, then heat is released and that heat is called exothermic in nature or it is called exothermic reaction. तो उसी तरह से चलता रहना है. यानी जो आपके 108 एलिमेंट्स है उसमें से 92 तो नेचुरली है, अर्थ में, एयर में कहीं ना कहीं आपके मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी बचे हुए 16 एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कवर नहीं किया गया, उनको बनाया गया है आर्टिफिशियली लैब्स के अंदर. तो हम वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेटल. एज ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द कॉपर. कॉपर की वायर आप घरों में यूज करते हो, जो प्लास्टिक की कवरिंग पे होती है. जब आप उसकी वायर को स्कोप से पील ऑफ करते हो एंड यू सीन दैट अ ब्राउन कलर वायर इज फाउंड दैट एंड दैट इज शाइनी इन द नेचर, that is your metal. और means we कहेंगे it is having the shiny nature. Shiny nature है. Shiny nature का मतलब they are lustrous in the nature. Right? ये आपके lustrous in the nature है. और आप देखोगे कि कॉपर की वायर है, आयरन के कोई भी आर्टिकल लेके आ रहे हो आप, स्टील के जो एलॉय से मिलके बनेगा उसको छोड़ो. तो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी आप बजा सकते हैं इसके अलावा सब देखोगे. फिजिकल टेम्परेचर स्टेट क्या उसकी, रूम टेम्परेचर में कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? सॉलिड स्टेट में. तो मोस्टली यू विल से दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट बोल सकते हैं एक्सेप्ट योर मरकरी. सिर्फ मरकरी को छोड़ दे विच इज प्रेजेंट इन योर thermometer, and that mercury is liquid at the room temperature because it can flow at your hand, so it can flow in your thermometer. Others are the solid at the room temperature. When you try to cut the iron and the copper or the gold and silver, it is difficult to cut. So means we can say these are the hard substances. Okay, but we will say these are the hard substances except कौन से छोड़ दें हम यहाँ पे? सोडियम एंड पोटेशियम. एग्जाम्पल है जब आपको साथ ही साथ मिल रहे हैं मेटल्स के. यदि मैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दूं, बाकी जितने भी मेटल है, मरकरी तो लिक्विड हो गया, उसको तो अलग कर दिया हमने. सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दूं, बाकी जितने भी मेटल्स है दे आर हार्ड इन नेचर एट द रूम टेम्परेचर. फोर्थ वन, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाउ विल यू प्रूव दैट दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कैन यू टेल मी? I can tell you how these are a good conductor of electricity. You have to make a circuit diagram in which you will use. Circuit diagram आपने लिया हुआ है पहले भी? Yes. Yes, भव्य. Excuse me, ma'am. मैम मेरा क्वेश्चन है कि आप मैम आपने मैम डे बिफोर यस्टरडे कहा था कि जो आयरन होता है वो जब बहुत जो
बिल्कुल प्योर आयरन होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो मैम मतलब उसकी बहुत ज्यादा acceptance नहीं लेकिन होगी। सॉफ्ट होता है। हाँ क्या नहीं होगी उसकी? मैम एक्सेप्टेंस नहीं होगी मैम कि आपने पीछे लिखा है ना नहीं, कि वो हार्ड इतना से। सॉफ्ट नहीं है which can, listen, that is hard which cannot be cut with the knife. I am telling you these are the hard substances except sodium and the potassium. Sodium और potassium are those metals which can be cut with the knife. जैसे आप सीजर से उसको कट कर सकते हो पेपर को, उसी तरह से आप सोडियम और पोटेशियम को कट कर सकते हो पेपर से, बट यू कांट कट द योर आयरन विद दैट। ओके, इसलिए उसको मैं हार्ड सब्सटेंस में इंक्लूड करूंगी, नॉट इन द सॉफ्ट मटेरियल्स। ओके भव्य? Yes. What are the good? How these are the good conductor of electricity? For example, we are having the electric bulb. ये सिंबल आपने पढ़े होंगे पहले। और यहाँ पे मैं क्या करूँ? वायर लगा दूँ। यहाँ पे मैं x और y दो पॉइंट छोड़ दूँ। और यहाँ की है कि आपकी किस में है? क्लोज में, यानी इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अभी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि मैंने इस x और y में अभी भी कुछ नहीं लगाया है। So what I will do? I will use a copper wire. मैंने यहाँ पे क्या लगा दी? कॉपर की वायर लगा दी, and the current will flow from here and the bulb starts glowing. What does it mean? कि जैसे ही मैंने यहाँ कॉपर की वायर लगाई, आयरन की वायर लगाई, तो बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया। So what it will prove that these are the good conductor of the electricity. Yes. Next we will say that they are having the ductility. What do you mean by ductility? Ductility means you are having like a rubber band है, उसको आप खींच लेते हो, खींचते ही जैसे आप उसको stretch करते हो, then it will changes into a thin. Like that, metals can be drawn into the wires by stretching them. Ductility का मतलब है drawn into wires. इसका एग्जांपल बिल्कुल इजी है। You will see that copper wire is present in your classroom and outside your home there are so many wires are moving from one way to the other way for the conduction of the electricity. So that is the property of the metals. हम कार्बन की नहीं बना सकते, हम डायमंड की नहीं बना सकते, हम सिल्वर उसकी किसकी नहीं बना सकते, आपकी सल्फर की नहीं बना सकते, ऑक्सीजन की नहीं बना सकते, क्योंकि वे सारे के सारे आपके क्या है? नॉन मेटल है। But we can make the wire of the iron, copper, silver, nickel, etc. जो silver that is the best conductor of electricity. जो इसका best conductor क्या है वो आपका silver है। तो आपके mind में एक question आएगा, man, why can't we use the silver for making the wires for the conduction of the electricity? कि electricity के conduction के लिए हम एक place से दूसरे place पे ले जाने के लिए silver wire क्यों नहीं use करते? Either it is having the good conduction of the electricity. Because the silver is we can say that costlier than that of the iron and the copper, and it इसको बनाना थोड़ा सा टफ नहीं है, बंद हो जाएगा, लेकिन जो इसकी कॉस्टिंग आएगी that is so much and it is not affordable and it can be stolen by the thieves. thief इसको क्या कर सकते हैं? चुरा के लेके जा सकते हैं। इसीलिए आपको जहां भी लगाओगे वहां से वायर टूटी हुई मिलेंगी। तो इसलिए जल्दी ज्यादातर हम किसकी यूज करते हैं? आयरन की और कॉपर की वायर यूज करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। डक्टिलिटी का समझ में आ गया, ड्रॉन इनटू द वायर, कि हम इसको खींच के और इससे क्या कर सकते हैं? वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से आप इतनी लंबी वायर तक बना सकते हो, जिससे आप बता सकते हो कि गोल्ड एंड द सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। जो गोल्ड और सिल्वर है सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल आपके 10th क्लास में है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट। So 6th property we can say that is malleability. Malleability means that can be beaten and changes into the sheets. Beaten to form sheets. कि उसको बीट कर करके मार के उसके क्या चेंज कर देगा? उसको किसमें चेंज कर देगा? शीट्स में चेंज कर देगा। आप देखो एल्युमिनियम की फॉइल आप यूज करते हो फॉर रैपिंग द फूड आइटम्स एक्सेट्रा।
सिल्वर फॉइल यूज करते हो फॉर डेकोरेशन ऑफ योर स्वीट्स, जो काजू कतली वगैरह पे आपकी लग के आती है, उसी तरह से गोल्ड की फॉइल भी आती है आपकी। और आपका जो आयरन की जो टिन वगैरह यूज करते हो, एल्यूमिनियम के जो आप दरवाजे यूज करते हो जो शीट्स में चेंज होते हैं, तो दे आर मेलिएबल इन नेचर, मीन्स दे कैन बी बीटन एंड चेंजेस इनटू द शीट्स। 1 ग्राम गोल्ड की, आपकी 1 ग्राम गोल्ड से इतनी पतली सी, आपकी इससे भी पतली आपकी क्या बन सकते हैं, शीट बन सकते हैं। These are the, वही gold and the silver are the most malleable element in the periodic table. Is there any doubt? Who is there? One. Malleability, yes. Malleability means there is any metal which can be beaten, and by beating it with the force, it can be changed into the sheets. इसको किसमें चेंज किया जा सकता है, शीट्स में चेंज किया जा सकता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप ये देखो जितने भी एरोप्लेन बने होते हैं, एरोप्लेन के ऊपर जो कवरिंग होते हैं वो किसकी बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज लाइटर मेटल। जो आपके घरों में टिन यूज करते हैं, टिन किसके बने होते हैं, आपके आयरन के बने होते हैं। आयरन के दरवाजे तो पूरी की पूरी लेयर शीट बनी हुई होती है। गोल्ड की है, गोल्ड फॉइल आप यूज करते हो, सिल्वर फॉइल यूज करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल जो रैपिंग ऑफ फूड में यूज करते हो। There are so many examples of these are present, which can be said that the metals are malleable in nature generally. सारे नहीं बोला मैंने, अब जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी, ये नहीं होंगे, लेकिन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है कि they can be changed into the sheets. What does it mean? They are malleable at the room temperature. Is there any doubt? Who's there? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। मैम जैसे आपने हम ये बताया, यहाँ पर आपने जनरली वर्ड यूज किया है, तो हम जैसे मैम सबसे पहले वाली आपने प्रॉपर्टी बताई थी कि शाइनी इन नेचर, लस्ट्रस होते हैं, तो मैम वहां पे भी जनरली लगाना चाहिए? नहीं, मोस्टली क्या, आप कोई भी मेटल देख लो, सभी लस्ट्रस इन नेचर है, वहां मैंने जनरली वर्ड नहीं यूज किया कि आप सोडियम लो, पोटेशियम लो, आयरन लो, आप नए नए आयरन की चीजें लेके आते हो, शाइनिंग होती है नहीं होती। उसी तरह से आप कॉपर के बर्तन लेके आओ, सिल्वर के लेके आओ, गोल्ड लेके आओ, जो भी आप नई चीज मेटल की खरीदोगे, दे आर लस्ट्रस इन नेचर। इवन यू आर वाचिंग द मरकरी, मरकरी को हाथ रखो, कभी भी आपका थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए बाय चांस, जैसे तो नहीं होना चाहिए, फिर इट विल ब्रेक इनटू द पीसेस, और उस मरकरी को आप हैंड पे रख के देखो, दैट विल बी आल्सो शाइनी इन द नेचर। तो इसलिए मैंने शाइनी नेचर पे वो यूज नहीं किया। क्या यूज नहीं किया? जनरली वर्ड। सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे जनरली, किसको छोड़ दिया मैंने, मरकरी को। एक्सेप्शन है, हार्ड होते हैं, किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दिया। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सिल्वर और गोल्ड, सबसे ज्यादा है। उसी तरह से डक्टिलिटी ड्रॉन इनटू द वायर्स, इसमें भी हम जनरली वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे मेटल्स को हम वायर्स में चेंज नहीं कर सकते। अब सोडियम और पोटेशियम जो खुद इतने सॉफ्ट है, आप उसको वायर्स में कैसे चेंज करोगे, लेकिन यहाँ हम जनरली वर्ड यूज कर सकते हैं। We can use the generally word in the malleable. Okay, Kushal? Yes. After that, they are generally sonorous in the nature. 7th one, sonorous. Sonorous means when strikes on the hard surface, they produces sound. कि जब hard surface पे टकराएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपके साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। For example, you have a ringing bell at your schools. There is a hammer is there, and a brass or a metal plate is there. And when the peon strikes on that, what will be happen? A sound will be produced that can be heard by all over the building. What is that? That is due to the property of sonorous. Means they are producing the sound. कब sound produce करेंगे? When strikes on a hard surface. आप कोई भी आयरन की की वगैरह ऊपर से ऐसे नीचे गिरोगे तो that will produces the sound. Even you will leave the iron utensil or the silver utensil or anything else, that will also produces the sound. That is the property of sonorous. अब यहाँ पे आपको भी सोडियम और पोटेशियम हो गया, तो वो तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर सॉफ्ट इन द नेचर। जो सब्सटेंस हार्ड होंगे और जब वो किसी और हार्ड सब्सटेंस के ऊपर टकराएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज योर सोनोरस. So you can easily give the examples of your metal
That may be your mercury, your sodium, potassium, silver, iron, gold, copper, etc. There are so many examples of the metals are present in your surrounding, and you are using some of them in your daily life, right? आप स्टील के यूटेंसिल करते हो, उसमें भी मोस्टली आपका क्या प्रेजेंट होता है, मेटल ज्यादा क्वांटिटी में होता है. नो डाउट सम अमाउंट ऑफ द नॉन मेटल इज आल्सो प्रेजेंट. So that is the property of the metals. Now we are discussing about the properties of the non-metal. इसी को ध्यान में रखें हम सारी के सारी प्रॉपर्टीज को करेंगे. सुनते रहना. First, shiny nature. The non-metals are non-shiny in the nature, means non-lustrous. क्या हो गया? Non-lustrous. Except किसको छोड़ दूं मैं? डायमंड को. डायमंड चमकता है, बहुत ज्यादा शाइन प्रोड्यूस करता है, तो मैं कहूंगी these are non-lustrous in the nature and except your diamond. Mostly are solid at the room temperature. Some of them are gases and some of them are liquid at the room temperature. अब जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल, एक है सिंगल है. याद रखना, कभी भी एग्जाम में आ जाता है, name a non-metal which is liquid at the room temperature, and that is known as bromine. Bromine is liquid at room temperature which is a non-metal. Otherwise आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सारी की सारी क्या आपकी हीलियम, नियोन है, ये सारी की सारी आपकी क्या गैसेस है, किसके ऊपर? रूम टेम्परेचर पे. कुछ आपके सॉलिड होंगे, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, वो सॉलिड भी होंगे. कुछ आपके लिक्विड भी होंगे, लेकिन एक सिंगल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और कुछ आपके गैसेस होंगे रूम टेम्परेचर पे. जैसे मैंने कहा हार्ड सब्सटेंसेस जनरली नहीं होते. जब गैसेस फॉर्म में है तो हार्ड नहीं होंगे. सल्फर और फास्फोरस भी हार्ड नहीं होते. सिर्फ एक किसको छोड़ के? डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल. इसको नॉन मेटल, अकेला नॉन मेटल ये इसलिए लिखा मैंने. द नॉन मेटल इज योर कार्बन. वी रिमेंबर कार्बन इज द नॉन मेटल. कार्बन है नॉन मेटल. Yes, what I am saying that कि मैंने पहले कहा था मोस्ट जनरली दे आर सोनोरस इन द रूम टेम्परेचर. जो सॉफ्ट होंगे वो तो सोनोरस हो ही नहीं सकते. कुछ आपके आर्टिफिशियली मेड किया गया, तो इसलिए यहाँ भी वर्ड लगाएंगे हम दे आर सोनोरस इन द नेचर. लाइक आफ्टर दैट कि मैंने आपको क्या बताया डायमंड का. डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन. वी रिमेंबर diamond is not a non-metal which is present in your periodic table. और ये एक कार्बन है जिसका आपको कोयला भी मिलता है, आपको ग्रेफाइट भी मिलता है, जो आप किसमें यूज करते हो, पेंसिल वगैरह में यूज करते हो, और उसी का एक एलोट्रोप है डायमंड. अब आप पूछोगे एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन द नेचर. एग्जिस्ट करती है नेचर में एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म्स which are having the different physical and the chemical properties, that is known as your allotropes. आपने शायद ये वर्ड सुना होगा allotropes. उसमें भी 8th क्लास में allotropes means allotropes is the property of a substance in which that substance exists in the different form in the nature which are having different physical and the chemical property. That is known as your allotrope. तो कार्बन के 3 allotropes प्रेजेंट है. One is known as your graphite, second is known as your diamond, and third one is known as your fullerene. ये आपके सिलेबस में ये पूरा का पूरा 10th क्लास में है. ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, डायमंड हार्ड होता है, और फुलरीन के बारे में इतना आपका अभी तक इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं आई है. उसके अंदर ये पता है कि कार्बन के 60 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस 60 कार्बन मिलकर एक फुलरीन बनाते हैं, और उसका जैसे आपकी बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल बास्केटबॉल, उसके जैसे उसकी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट, राइट. तो अभी वी आर डिस्कसिंग यानी हार्ड सब्सटेंस. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल को बोला था दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे कॉपर वायर की जगह यदि मैं यहाँ पे कार्बन रख दूं, सल्फर रख दूं,
या कोई और नॉन मेटल रख दूं, तो whether the current will be passed through or not, the current will not be passed through the circuit. Means the bulb will not glow. What does it mean? They are poor conductor of electricity. वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी फ्लोन थ्रू दैट एक्सेप्ट. और फिर एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट योर ग्रेफाइट. सिर्फ किसको छोड़ दो? ग्रेफाइट को छोड़ दो. ग्रेफाइट इज अ पुअर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. What does it mean? This is an exception of the non-metal through which electricity can be passed due to presence of the free electron. इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हर एटम के साथ फ्री होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? आपकी पास हो सकती है. That is गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज योर ग्रेफाइट. बाकी सारे के सारे आपके पुअर कंडक्टर होंगे नॉन मेटल्स के अंदर. डक्टिलिटी. अब कोयले को आप जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. सल्फर को तोड़ोगे वो भी टूट जाएगा. फॉस्फोरस को तोड़ोगे वो भी टूट जाएगा. यानी दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द वायर्स और कैन नॉट बी बीटन इनटू द शीट. ना तो इनकी शीट्स बना सकते हैं, ना इनकी वायर बना सकते हैं. और दे आर नॉन सोनोरस इन द नेचर. जब आपका हार्ड सरफेस पे टकराएंगे दे विल नॉट प्रोड्यूस द साउंड. So that is known as the non-metal. We can give example in the non-metal. कार्बन, सल्फर लिखा मैंने. उसी तरह से आप दे सकते हो ऑक्सीजन दे सकते हो, नाइट्रोजन दे सकते हो, फास्फोरस दे सकते हो, ब्रोमीन दे सकते हो, क्लोरीन दे सकते हो. There are so many examples of the non-metals are present in your nature or in your surrounding. Third one which we will discuss, that is about your metalloids. Metalloids is not so much in your flavor. So metalloids are those elements or the substances which are having the property in between metals and the non-metals. जिसकी जो properties है वो किसके बीच में होंगी? Metals and non-metals के बीच में जो properties होंगी that are known as the metalloids. इनमें से करंट कंप्लीटली पास नहीं होता, बट दे कैन अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम टू अ लिटिल एक्सटेंट. मींस कैन पास करंट टू अ लिटिल एक्सटेंट. कुछ हद तक ये क्या कर सकते हैं? करंट को पास कर सकते हैं. इसीलिए इसमें से कुछ आपके सेमीकंडक्टर भी बनाए जाते हैं. तो जो मेटलॉइड्स होंगे they are used to form the semiconductor. Semiconductor means which are the conductor. Conductor आपने word सुना हुआ, which are having the property to allow the current to pass through that easily. जो अपने अंदर से करंट को पास करने देंगे उसको क्या बोलते हैं? हम कंडक्टर बोलते हैं. इससे आगे सेमी वर्ड लग गया था हाफ. सेमी का मतलब जैसे आपने सेमी सर्कल पढ़ा है कि हाफ सर्कल को आप सेमी सर्कल करते हो, सेमी हेमिस्फीयर हो गया, कुछ भी बोल सकते हो, हेमिस्फीयर. उसी तरह से जब कंडक्टर है, जब वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से, उनको कंडक्टर बोलेंगे. लेकिन कुछ हद तक पास करने देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर. These are having the property of the metals and the non-metals. कि ये हार्ड भी हो सकते हैं, कुछ इसमें से कुछ सॉफ्ट भी हो सकते हैं, कुछ आपके शाइनी नेचर का भी हो सकता है, कोई आपका शाइनी नेचर का भी नहीं हो सकता. इसके बेस्ट एग्जांपल 3 याद रख लेना: बोरॉन, एल्यूमिनियम, boron, germanium. Aluminum is a metal. Germanium and silicon. These are the most important example of the metal: boron and germanium and the silicon. These are having the properties of the non-metal as well as the metal. जो सिलिकॉन है उसकी जनरली प्रॉपर्टीज किसके आसपास की होंगी? नॉन मेटल के आसपास की होंगी. जर्मेनियम में कुछ हद तक आपका क्या पास कर सकता है? करंट पास कर सकता है, जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है. और जो बोरॉन की जो ज्यादा प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी, किसके? मेटल्स के सिमिलर होगी. लेकिन पूरी की तरह मेटल की नहीं होगी, ना पूरी की पूरी तरह नॉन मेटल होगी, इन बिटवीन टर्म होगी. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोल सकते हैं. जो आपको पीरियोडिक टेबल में बताई थी कि 108 एलिमेंट्स आर देयर, जिसमें से 92 आपके क्या है? आपके नेचुरल है, बाकी सारे के सारे आर्टिफिशियली मेड है. उसी तरह से मोस्टली आपके सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे
कुछ गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये आपके इस टाइप से 11 एलिमेंट्स है जो आपके किस स्टेट में मिलेंगे, गैसियस स्टेट में मिलेंगे। दो गैलियम एंड सीजियम, CaESI, ये ऐसे है कि वैसे तो सॉलिड होंगे, लेकिन जैसे आप अपने पाम पे रखोगे, आपका टेम्परेचर 38 डिग्री के आसपास है, तो ये 303 केल्विन डिग्री पे आते ही चेंजेस इनटू लिक्विड, इसके अंदर चेंज हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएंगे एट 30 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से दो एलिमेंट्स जो आपको मैं बताती हूँ, मरकरी और सिल्वर, सॉरी मरकरी एंड ब्रोमीन are liquid at room temperature. One is your metal and another will be your non-metal. So last topic is left, that is known as your compound. If we will start it today, it will not be completed. तो आज हमने पूरा का पूरा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, क्या वो है. We have discussed each and everything. I think someone is having the doubt. नहीं? Okay. If you are having any doubt, then do. Otherwise, I am going to end this class. बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास करने में हेल्प करते हैं, वैसे तो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ कि मैंने आपका जब ये भी बनाया था, मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बताया था। यदि इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्री होंगे तो इन द अपोजिट डायरेक्शन द करंट विल बी फ्लो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल हेल्प इन द मूविंग ऑफ द करंट। कैसे हेल्प करेंगे कि they will pass the energy from one to the other to the other and they will oscillate at their